لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من إطرته أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم۔ حاضرین و ناظرین، آج شب یکم ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین چینل اور اراکین ادارہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شب کی کہ جو شب منسوب ہے مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی سید عالمیان یعنی بی بی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شادی اور ازدواج اور رخصتی سے۔ یکم ذی الحجہ دین مبین اسلام میں خود ایک جائے رکھتی ہے اور اس کا ایک مقام ہے، اور آج کی رات سے لے کر یعنی شب یکم ذی الحجہ سے لے کر شب دہم ذی الحجہ تک یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے تکریم بخشی ہے اور ان کو محترم جانا ہے۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ والفجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہ یہی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلوایا گیا 30 دن کے لیے، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو 10 دن اور اللہ نے اپنا مہمان بنایا، تو وہ 10 دن بھی یہی ذی الحجہ کے دن تھے۔ لہٰذا ان کے اپنے اعمال ہیں، افعال ہیں، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں کہ جو آپ کو متعدد دعاؤں کی کتابوں میں یقیناً مل جائیں گی۔ آپ ان کو ضرور دیکھیں اور پڑھیں اور ان پر عمل کریں، اور اس ماہ کو مبارک جانتے ہوئے خداوند عالم سے اس ماہ کے صدقے میں آمرزش طلب کریں، مغفرت چاہیں اللہ سے، اور توبہ کریں اور اپنے لیے دین اور دنیا کی کامیابی کی دعائیں کریں، کیونکہ اس ماہ میں 2 عید ہیں، ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید غدیر کہا جاتا ہے۔ ہماری یہ سیریز جو اسلامک میرج کے عنوان سے مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس وقت کا اور ان ایام کا انتخاب اسی لیے کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان میں یہ ایک مبارک تاریخ بھی آئے گی کہ جس تاریخ پر حضرت زہرا اور مولا الموحدین کا عقد ہوا ہے۔ میں آج انہی کے عقد کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ علی و فاطمہ جیسی کامیاب زندگی گزارے تو پھر اسے حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی ابتدائی زندگی یعنی شادی سے پہلے کے حالات کو دیکھنا ہوگا، اور شادی کے موقع پر ان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدام پر نگاہ ڈالنی ہوگی کہ کس نیت کے ساتھ اور کس برکت کے ساتھ حضرت زہرا مولا کائنات کے گھر میں آئیں کہ یہ اتنا بابرکت گھر ہو گیا کہ اب قیامت تک ان کی نسل باقی بھی ہے اور ان کی نسل معصوم بھی ہے۔ اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آج پوری کائنات کے اندر سادات موجود ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین مبین اسلام میں ارلی میرج کو لے کر یعنی شادی میں جلدی کو لے کر کئی مرتبہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو جب یہ محسوس ہونے لگے کہ اب اس کا چارہ بنا اس کے شریک کے نہیں ہے، اور آنکھیں یا بدن یا ہمارے احساسات حرام کی طرف بڑھنے لگیں، اس سے پہلے انسان کو اپنی شادی کی فکر کرنی چاہیے اور والدین کو ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان پر تنبیہ کریں کہ ابھی تمہاری عمر شادی کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جن کے شیعہ ہیں یعنی مولا الموحدین امیر المؤمنین کے، اور جن کی امت ہیں یعنی پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت پہ چلنا ہمارے اوپر فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ شادی کے معیار کیا ہونے چاہیے اور کیا نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا جب بی بی فاطمہ الزہرا کے عقد کا ارادہ کیا ہے پیغمبر اعظم نے، تو اب مدینے سے متعدد رشتے آ رہے ہیں پیغمبر کے پاس، آپ سنتے رہتے ہیں، جس میں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے بھی اپنے رشتے بھیجے کہ جن کو پیغمبر اعظم نے رد کر دیا۔ وہیں پر ایک نام ہے تاریخ میں عبد الرحمن ابن عوف،
کہ ये एक ताजिर था जिसके पास मालो मता बहुत ज़्यादा था, ये भी ये चाहता था कि पैगंबर की बेटी से अक़्द करे ताकि पैगंबर की वजह से इसका भी एहतराम बढ़ जाए और मदीने में ये फ़ख्र फरोशी कर सके। लिहाजा इस इरादे से पैगंबर आज़म के पास आता है और आने के बाद कहता है कि आपकी बेटी अब जवान हो रही हैं और उनको अपने वक्त के घर जाना है, अपने शौहर के घर जाना है, लिहाजा मैं चाहता ये हूँ कि आप अपनी बेटी को मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें और मेरे हवाले कर दें। और इसके बाद अब वो पैगंबर को एक मादा परस्त इंसान समझते हुए दौर जहालत की वो बातें करना शुरू करता है कि जो पैगंबर को गमज़दा भी करती हैं और उनको जलाल भी आ जाता है। आके कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को मेरे हवाले करेंगे तो मैं 100 ऐसे ऊँट के जो सुर्ख होंगे, सुर्ख ऊँट एक इस्तिलाह थी अरब के अंदर के बहुत महंगे समझे जाते थे, वो ऊँट मेहर में दूंगा कि जिस हर ऊँट के ऊपर बाज़ अफराद ने लिखा कि यमनी रेशमीन कपड़ा और बाज़ ने लिखा कि मिस्री रेशमीन कपड़ा पड़ा होगा, वो सब भी हमारा मेहर होगा। और 10,000 दिरहम और दीनार यानी सोने के सिक्के मैं हज़रत ज़हरा का मेहर करार दूंगा, आप अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दीजिए। तारीख़ बताती है कि पैगंबर ने जब ये सुना तो आप गज़ब के आलम में एक मरतबा अपने हाथ को ज़मीन पे मारते हैं। ज़मीन पे मारने के बाद जो ज़मीन की खाक है, जो ज़र्रात हैं, जो संगरेज़े हैं, उनको उठाते हैं और अब मुट्ठी को खोल के कहते हैं कि क्या तू भी मुझे अपने जैसा समझता है? क्या तू समझता है कि मैं दुनियावी लज्जात की बुनियाद पर ज़हरा को उसके घर भेजूँगा? तू क्या ये समझता है कि जैसे दौर जहालत में मालो मता का लालच दे के अक़्द हुआ करते थे, मैं अपनी बेटी का अक़्द भी वैसे ही करूँगा? देख, अगर हम चाहें तो ये संगरेज़े सोने में बदल जाएं। और अब पैगंबर ने जो अपनी मुट्ठी को खोला और हाथ को खोला तो देखा जो संगरेज़े पैगंबर के हाथ में आए थे, दस्ते मुबारक में आए थे, वो सब जवाहरात में तब्दील हो चुके हैं। तब इसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। और इसके बाद पैगंबर ने फरमाया कि मेरी बेटी के अक़्द का फ़ैसला खुदा के हाथों में है, मैं इसमें बस खुदा के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसा हुक्म होगा वैसा किया जाएगा। और ये रद्द कर दिया जाता है। और इसके बाद वो 2 अफराद भी आते हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि वहाँ भी पैगंबर ना मना करते हैं, ना इकरार, यानी न तो इकरार करते हैं कि हाँ तुम्हारे यहाँ ज़हरा जाएंगी, ना इनकार करते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, बल्कि वही जुमला कि खुदावंद आलम के हाथों में मैंने इस ज़िम्मेदारी को सौंप रखा है और इसका हुक्म खुदावंद आलम की ही तरफ से आएगा। और मेयार दौलत नहीं होगी, मेयार शराफत होगी, ईमान होगा और इखलास होगा। और जब ये बात मदीने में शुरू हुई कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ का रिश्ता ठुकरा दिया गया है और मेयार ईमान और इस्लाम है, तो अब मदीने में ये चर्चा आम हो गई कि हो ना हो पैगंबर ज़हरा को अली के हवाले करने वाले हैं और शायद अली को अपना दामाद बनाना चाहते हैं कि जिनके पास यकीनन माल दुनिया से तो कुछ भी नहीं है, मगर ईमान और इखलास और एतक़ाद उस आलम पे है कि लो को शफ़लगता मज़्ज़त तो यकीना की मंजिल में मौला कायनात हैं। लिहाजा अब ज़हरा अली के यहाँ जाएंगी। और अब बाज़ दिलजुई करते हुए अफराद ने और मोहब्बत करने वाले अफराद ने मौला मुवाहिदीन से ये फरमाया कि आप जाइए और पैगंबर से उनकी बेटी का रिश्ता मांगिए। मौला कायनात ने कहा कि मेरे पास माल दुनिया में से कुछ भी नहीं है और पैगंबर न सिर्फ ये कि नबी खुदा हैं बल्कि वो मेरे बाप की जगह हैं, उन्होंने मेरी तरबियत की है, मुझे हया आती है कि मैं उनके पास जाऊं और उनकी बेटी का रिश्ता मांगूं। और ये कह के मौला मुवाहिदीन ने रद्द कर दिया। लेकिन जब दोस्तों ने और चाहने वालों ने इसरार किया तो पैगंबर के पास आए हैं, कुछ कहना तो चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं होती। 3 मरतबा मौला कायनात आते हैं मगर जब कुछ नहीं कह पाते तो तीसरी मरतबा ही पैगंबर आज़म ख़ुद कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि शायद तुम ज़हरा के रिश्ते के मुताल्लिक़ मुझसे बात करने के लिए आए हो। मौला कायनात नज़रों को झुकाते हैं और पैगंबर फरमाते हैं कि नहीं, तुमको पूरा हक़ है, तुम अक़्द के लिए हाथ मांग सकते हो और ये उमूर मैंने खुदा के हवाले किए, तुम्हारे पास माल दुनिया में क्या है। अब यहाँ से हमें अपनी ज़िंदगी को तलाशना चाहिए कि जब हम अपनी बेटी को देना चाहते हैं या हम किसी की बेटी लाना चाहते हैं, और आम तौर पर जो समाज होता है वो फ़ौरन हमसे भी यही सवाल करता है कि साहब आप करते क्या हैं, कमाते कितना है। और अगर आपने कहीं ये कह दिया कि 3,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तो ना तो बेटी का बाप कोई लड़की आपके हवाले करने वाला है और ना आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को किसी ऐसे फ़र्द के हवाले करने वाले हैं। जबकि मौला मुवाहिदीन ने जब ये कहा कि माल दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ज़रा है, तो अब पैगंबर फरमाते हैं कि बस काफ़ी है, इस ज़रा को बेचो और फिर अब मेहर में उसी ज़रा से आई हुई रकम आधी रकम मेहर बन जाएगी और आधी रकम से तुम्हारा वलीमा होगा जो सुन्नत है। और यहीं से वलीमे की इब्तदा हुई है। इससे पहले वलीमे का जो अंदाज़ था दौर जहालत में वो जुदा था, लेकिन इसके बाद पैगंबर ने ये सुन्नत बनाई कि जब कोई ज़ौजा अपने शौहर के घर पहुँचे तो अगले दिन वो शौहर मोमिनीन की दावत करे, और ये भी जो दावत हो वो
दूल्हा के पैसों से हो, यानी जो शौहर है उसकी जायदाद और उसकी मिल्कियत और उसके माल से हो, यानी मेहर भी दे तो मर्द और खाना भी खिलाए तो मर्द, यानी लड़की के ज़िम्मे कुछ भी नहीं है दीन इस्लाम की तरफ से। वो खुशी में जो कुछ देना चाहे, जो जहेज़ देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन शरीयत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर लड़की के घर वालों के ऊपर बोझ डाला गया हो। अगर दीन मुबीन इस्लाम का यही तरीक़ा पूरी दुनिया में राइज हो जाता तो आज बेटी हमें बद्दुआ नज़र ना आती बल्कि रहमत नज़र आती, कि जैसे पैगम्बर आदम के लिए बीबी ज़हरा रहमत थी, और ऐसी रहमत कि वो अपने बाप की माँ कहलाईं। हमने दीन और इस्लाम की रस्मों को मुनहदिम कर दिया है और अपने रस्म और रिवाज को चूँकि शादी और बारात जैसे मामलात में दाखिल कर दिया है, लिहाजा हमको अब शादी एक मुश्किल का काम लगती है, जबकि ये मुश्किल का काम लड़के के लिए तो हो सकता था, लेकिन लड़की के घर वालों के लिए शादी कोई मुश्किल का काम नहीं थी। बहरहाल मैं चंद बातें और जो बयान करना चाहता हूँ वो ये कि जहेज़ में क्या दिया गया। आम तौर पर ये आपने देखा होगा कि जब शादियाँ होती हैं तो कहा जाता है कि मेहर फ़ातिमी लिखवा दिया जाए, जिसको मेहर सुन्ना भी कहा जाता है, कि जो सुन्नत का मेहर है वो लिखवा दिया जाए। तो मैं आपके लिए बयान कर दूं कि बीबी ज़हरा का जो मेहर था वो 400 या 500 दरहम था, कि जो तकरीबन 1.5 किलो चांदी बनती है आज के ज़माने में, कि ये पैगम्बर आदम ने हज़रत ज़हरा का मेहर रखा था। और अगर इंसान आज के दौर में भी 1.5 किलो चांदी रखता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी है, और पैगम्बर इस्लाम की तासी करते हुए हमें इससे ज़्यादा मेहर से बचना चाहिए, क्योंकि पैगम्बर ने ये इरशाद फरमाया कि बदबख्त है वो औरत कि जिसका अखलाक तो बद हो ही, उसके अलावा उसका मेहर भी ज़्यादा हो, और इसके मुकाबले में फरमाया खुशबख्त है वो औरत कि जिसका मेहर बहुत कम हो। लिहाजा हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम स्टेटस के एतबार से कभी कभी इतना ज़्यादा मेहर रखवा देते हैं कि सब लोग सुन रहे हैं लिहाजा हम 10 लाख लिखवा दें। मेहर लिखवाना और है और अदा करना और है। उतना ही लिखवाया जाए जितना शब ज़फ़ाफ़ से पहले ज़ौजा के हवाले कर दिया जाए। मेहर अक़्द के फ़ौरन बाद अदा कर देना चाहिए या अक़्द से पहले अदा कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो मरासिम शुरू हों जो एक ज़ौजा और शौहर के शुरू होते हैं, उनसे पहले मेहर की अदायगी होनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ लिखवा देना निकाहनामे पे काफ़ी नहीं है, बल्कि उस रकम को देना ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा उतनी ही लिखवाई जाए जितनी हम अदा कर सकते हैं। लिहाजा यह 400 दरहम है या 500 दरहम है। इसके बाद पैगम्बर आज़म ने निकाह ख़ुद पढ़ा, जैसा मशहूर है कि इसका एक तो निकाह खुदावंद आलम ने अर्श पे पढ़ दिया था, आसमान पे पढ़ दिया था, और बाज़ रवायतों में जिब्रील ने वक्त पढ़ दिया था, और नीचे जो है वो पैगम्बर आज़म ने ये जो निकाह पढ़ा, इसमें खुतबा निकाह है जो इब्ने शहर आशूब ने जो उसकी मतन बयान किए, फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा की शादी के वक्त पैगम्बर आज़म मिंबर पर गए और फरमाया कि खुदावंद आलम ने मुझे हुक्म दिया है कि फ़ातिमा का निकाह अली के साथ करूं, और अगर अली राज़ी हों तो 400 मिस्काल चांदी हक़ मेहर के तौर पर मैं फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। मौला कायनात ने फरमाया कि मैं इस काम पर राज़ी हूँ, यानी 400 दरहम की रवायत हमारे पास है। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा की मौजूदगी में रसूल खुदा ने हज़रत अली के लिए दूसरी शादी हराम करार दी थी हुक्म खुदा से। लिहाजा इसीलिए जब तक हज़रत ज़हरा ज़िंदा रहीं मौला कायनात ने दूसरी शादी नहीं की है। शादी की तारीख़ को लेकर मुतअद्दिद रवायात हैं, मगर ये मुस्तनद रवायत है कि पहली ज़िलहिज्ज को रुखसती हुई है बीबी ज़हरा की मौला कायनात के घर, जबकि 10 माह पहले अक़्द पढ़ा जा चुका था। अक़्द 10 महीने पहले हुआ है, रुखसती 10 माह के बाद हुई है। उसकी भी वजह यह थी कि ज़हरा का अक़्द पहले कर दिया गया ताकि सुन्नत बन जाए कि लड़की का अक़्द जितनी जल्दी हो सके उतना कर दिया जाए, और रुखसती का इंतज़ार इसलिए किया गया ताकि इतने दिनों में इस्टेब्लिश हो जाए वो शौहर भी कि वो अपनी ज़ौजा को घर ला सके और दूसरे भी ज़िम्मेदारियों से आगाह हो जाए बेटी, और बाप उसको अब एक ज़ौजा की हैसियत से उसके फ़राइज़ बता सके। लिहाजा 10 माह पहले अक़्द हुआ है और 10 माह के बाद यानी पहली ज़िलहिज्ज को आपकी रुखसती है। अब इनमें रवायात अलग अलग हैं, कोई शव्वाल में कहता है, कोई 6 ज़िलहिज्ज कहता है, लेकिन जो मुस्तनद है वो यही, और जिसको ज़्यादा उलमा ने मुस्तनद माना है वो पहली है। मैंने आपके हवाले किया कि आपका मेहर क्या था, 500 दिरहम मुअय्यन हुआ था। 500 दिरहम तकरीबन 1250 से 1500 ग्राम चांदी होती है, और उस ज़माने में हर 10 दिरहम चांदी 1 दीनार सोने के बराबर थी, और मेहर सुन्ना तकरीबन 170 से 223 ग्राम सोना ये भी हो सकता है, यानी अगर चांदी नहीं लिखवाना चाहते तो 170 ग्राम सोने से लेकर 223 ग्राम जो सोना होगा ये भी मेहरुस सुन्ना कहलाता है। ये वज़न था बीबी ज़हरा के मेहर का। मौला कायनात ने मेहर की अदायगी के लिए ज़रा बाज़ रवायतों में है बेची, बाज़ रवायतों में है कि भेड़ का चमड़ा था, यमनी कुर्ता या ऊँट, इनमें से कोई एक चीज़ फ़रोख्त की और इस रकम को पैगम्बर के हवाले कर दिया।
पैगंबर ने बग़ैर उस रकम को गिने हुए हज़रत बिलाल के हवाले किया और कहा मेरी बेटी के लिए अच्छी खुशबू ख़रीद कर ले आओ, और बाकी बची हुई रकम को अबू बकर को दिया और फरमाया कि जो घर की ज़रूरी अशिया हैं उनको तुम जाके ख़रीद के लाओ। और जब ये चलने लगे तो दूसरे और असहाब को भेजा कि तुम भी जाओ और मेरी बेटी के लिए जहेज़ तैयार करो, उसी पैसे से जो मौला कायनात ने ज़रा बेच कर पैगम्बर के हवाले किया था। जो शेख तूसी ने जहेज़ की फ़हरिस्त बयान की है वो मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा, आमतौर पर इसका ज़िक्र नहीं होता। जो जहेज़ मिला है बीबी को, जो पैसा मौला कायनात का है, ख़रीदा पैगम्बर आज़म ने इसलिए कि वो न सिर्फ ये कि बेटी के बाप हैं बल्कि मौला कायनात के सरपरस्त भी हैं और भाई भी हैं और नबी हैं, लिहाजा पैगंबर ने दोनों तरफ से अफ़आल को अंजाम दिया है। एक बुरक़ा जो 4 दिरहम का था, खैबर में तैयार करदा अबा, खजूर के पत्तों से बनी हुई चारपाई, 2 बिछौने जिनका बैरूनी कपड़ा मोटी काटन का था, एक खजूर की छाल से और दूसरा भेड़ की ऊन से भरा हुआ था। ताइफ के तैयार करदा चमड़े के 4 तकिए जिन्हें अज़खर यानी मक्की घास, बोरिया, चटाई की तैयारी में इस्तेमाल होती है उसके थे। इसके पत्ते बारीक हैं जो तिब्बी खुसूसियात के हामिल हैं, यानी उनको आज के दौर में भी इस्तेमाल करना बेहतर समझा जाता है। ऊन का एक पर्दा और हिजर में बनी हुई एक चटाई, गोया हिजर से मुराद बहरैन का मरकज़ है, न हिजर मदीने के करीब एक गांव का नाम है, या तो वहाँ का बना हुआ था या यमन का बनी हुई एक चटाई दी थी। एक दस्ती चक्की, तांबे का तश्त, चमड़े का मशकीज़ा, लकड़ी का बना हुआ डोंगा, दूध दूहने के लिए गहरा बर्तन, पानी के लिए एक मश्क, एक मुतहरा यानी लोटा या सुराही जिसे तहारत यानी वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर गोंद चढ़ाया गया था, मिट्टी के कई मटके या जाम। ये इतनी चीज़ें हैं कि जो बीबी ज़हरा को जहेज़ में मिली हैं, और ये जहेज़ बाप ने नहीं दिया बल्कि मेहर के पैसों से ख़रीदा गया था। कहा गया कि शादी के बाद एक हाजतमंद औरत ने जब हज़रत ज़हरा से कुछ मांगा तो आपने वो शादी का जोड़ा हवाले कर दिया, जिसके वाक़यात आप सुनते रहते हैं। अब बात आती है, ये तो जहेज़ की होगी, वलीमे में क्या था? पैगम्बर अकरम ने बिलाल हबशी को बुलाया और फरमाया मेरी बेटी की शादी मेरे चचा के बेटे से हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के लिए शादी के दिन खाना देना एक सुन्नत हो, वाजिब नहीं है, सुन्नत हो, इसलिए जाओ और एक भेड़ और 5 मद जौ मुहैया करो ताकि मुहाजिरीन और अंसार को दावत दूँ। बिलाल ने यह सब तैयार किया और रसूल के पास ले आए। आपने ये खाना अपने आगे रखा और लोग पैगंबर के हुक्म पर गिरोह दर गिरोह मस्जिद में दाखिल होते हैं और सब ने खाना खाया। जब सब ने खाना खा लिया तो कुछ मकदार में जो बच गया था उसको आपने मुतबर्रिक किया और बिलाल से फरमाया इस खाने को औरतों के पास ले जाओ और कहो ये खाना खुद भी खाएँ, और कोई भी अगर उनके पास आए तो उसको भी इस खाने में से दें। और इसके बाद पैगंबर ने वलीमे के बाद जब मिलने गए हैं बेटी से तो फिर वहाँ पर दुआ दी है, मुबारकबाद दी है और एक दूसरे का हाथ हाथों में देकर दुआ की है कि तुम एक दूसरे की मोहब्बत दिलों में बाकी रहे, तुम्हारी नस्ल मुबारक हो। इस तरह की दुआएं भी वारिद हुई हैं। जो एक अहम चीज़ है वो ये कि जब बहरहाल पैगंबर की बेटी जो माँ का दर्जा रखती थी, इसलिए आपने कई मरतबा कहा फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। जब मौला कायनात के घर आ जाती हैं तो फिर अब बेटी को जब देखने का दिल करता है तो एक दिल कुड़ता है बहरहाल बाप का। तो शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद पैगंबर के लिए फ़ातिमा से दूरी मुश्किल हो गई, इसीलिए सोचा कि बेटी और दामाद को अपने घर में जगह दे दी जाए। हारिस इब्न नोमान के जो पैगंबर के एक सहाबी थे, जब उनको ये खबर हुई कि पैगंबर चाहते हैं कि अली और फ़ातिमा को अपने नज़दीक बुला कर रखें या अपने घर में बुलाएं, तो फरमाया कि मेरे सारे जितने भी घर हैं, ये फरमाते हैं जो साहबी हैं इब्न नोमान, हारिस जिनका नाम है, कहते हैं मेरे सारे घर जो हैं वो आपके घर के नज़दीक हैं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि आप एक घर ले लीजिए और उसमें अली और फ़ातिमा को सुकूनत दे दीजिए कि वो आपके नज़दीक भी रहें और मेरे लिए ये घर बाबरकत बन जाएँ। और फिर पैगम्बर ने ऐसा ही किया और वो हारिस इब्न नोमान का घर मौला कायनात और बीबी ज़हरा के हवाले किया गया। अलबत्ता इसमें मुतअद्दिद रवायात हैं, कितनी मुस्तनद हैं, कितनी मौसक़ हैं, वो अपनी जगह पे जाए तहक़ीक़ है, मगर ये एक कुल्ली शादी है। अब देखें, ना इस शादी में माजा है, न इस शादी में मेहंदी है, न इस शादी में चौथी है, न इस शादी में चाला है। इसमें 4 चीज़ें हैं। अगर इतनी आसान शादी हो जाए तो फिर किसी भी लड़की का बाप परेशान नहीं होगा। क्या हुआ है? एक मेहर की रकम है जिसको मुहैया करना है, उसी रकम से जहेज़ का सामान इकट्ठा करना है, उसके बाद उसी जो पैसा मर्द का है उसी से एक छोटा सा वलीमा करना है या बड़ा सा वलीमा करना, छोटा सा वलीमा करना। इसका मतलब ये है कि जो भी हैसियत है उसका एक वलीमा करना है
اور اس کے بعد رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ ان کو چاہیے۔ اگر شادی کے یہی معیار طے ہو جائیں اور ہم بڑی بڑی سیلریز کے پیچھے نہ بھاگیں، بڑے بڑے بزنس کے پیچھے نہ بھاگیں، تو آج ساری بیٹیاں اپنے گھروں میں ہوں اور قناعت اگر ان کے اندر پائی جائے تو پھر یہ سماج جنت والا سماج بن جائے اور دنیا کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ لہٰذا ہم جب مولا کائنات کی بات کرتے ہیں، بی بی زہرا کی بات کرتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب پڑھتے ہیں، تو دعا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کا بھی ہنر آ جائے اور توفیق مل جائے کہ ہم جو باتیں زبان سے کہتے ہیں وہ عملی زندگی میں بھی ہمارے دکھائی دیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے یہاں شادی کو جلدی کرنے کا بھی ایک رواج ہو جائے گا۔ اب جلدی کرنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ملک کے قوانین کو توڑ دیں، نہیں، جو ملک کی قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حکومت آپ کو وقت دیتی ہے، یعنی جس ملک کی بھی حکومت نے جو بھی ٹائمنگ دی ہے، اس ٹائمنگ کے بعد جلدی کرنی چاہیے کہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر میں ہو، اور لڑکے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ شیطان یرغمال کرے اور حرام کی طرف لگا دے، وہ ایک زوجہ کو اپنے گھر میں لے آئے تاکہ نفس کی تسکین ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کا لباس بن جائیں۔ بعض وقت یہ البتہ ہوتا ہے کہ ایک کسی کو گھر میں لانا ایک زحمت کا سبب ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کی نگاہ میں خرچ کہاں سے آئے گا، تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عقد کر لیں جلدی اور رخصتی اپنے معینہ مدت کے اوپر کر لیں، تاکہ اس عقد کے کرنے کے بعد آپ کے لیے اس سے بات کرنا شرعاً جائز ہو جائے اور ہمارے بھی بہکنے کے چانسز کم ہو جائیں، جس کو صیغہ محرمیت کے نام سے بھی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ صیغہ محرمیت کچھ الگ سے کوئی صیغہ نہیں ہے، بلکہ بیٹا اپنے گھر میں اور بیٹی اپنے گھر میں، ان کے درمیان عقد پڑھ دیا جاتا ہے، وہی صیغے پڑھے جاتے ہیں جو نکاح میں پڑھے جاتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک دونوں طرف کے لوگ راضی نہ ہوں گے رخصتی نہیں ہوگی۔ لڑکا اپنے یہاں رہے گا، لڑکی اپنے یہاں رہے گی۔ یہ لوگ فون سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ملاقات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقد کے بعد وہ تمام رشتے جائز ہو جاتے ہیں جو عقد سے پہلے جائز نہیں ہوتے۔ لہٰذا صیغہ محرمیت بھی وہی عقد نکاح ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اس وقت تک جب تک طرفین راضی نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اپنے جوانوں کی شادی کے راستوں کو صاف کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر، اور اپنے گھر کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، سماج کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی چاہیے، اور وہ قربانیاں سنت رسول، سنت علی اور سنت فاطمہ کے ادا ہوتے ہوئے ہو جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے اور اپنے تمام شرکاء کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولا الموحدین امیر المؤمنین اور بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی شادی اور ازدواج اور رخصتی کے موقع پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمارے سماج کو ویسا بنا دے جیسا پیغمبر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔